Good morning to all. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, good morning. Good morning, sir. Good morning. आज का इस महत्वपूर्ण वेबिनार में मैं फरहत हुसैन सीआरसी परिवार के तरफ से मुख्य अतिथि डॉक्टर हिमांशु दास सर को वेलकम करते हैं। हम लोग का रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर मैडम को हम वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है करिकुलम एडाप्टेशन इन इम्पार्टिंग स्किलिंग फॉर पीडब्ल्यूडीज ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड-19। ये कोविड-19 के दौरान और बाद में दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रदान करने में करिकुलम एडाप्टेशन जैसा महत्वपूर्ण विषय पर सीआरसी सिक्किम का अतिथि स्वीकार करके मुख्य अतिथि एवं वक्ता परम आदरणीय श्रीमान बी नागेश्वर सर, असिस्टेंट डायरेक्टर AYJNISHD ERC ईस्टर्न रीजनल सेंटर कोलकाता। सर कई वर्षों से दिव्यांगजनों के शिक्षा, कौशल विकास एवं और अन्य विभिन्न कार्यक्रम को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ और बहुत सारे राज्यों में सर बहुत दिन से सर का एक्सपीरियंस है। तो इसी कोविड-19 के पीरियड में सर का एक्सपीरियंस सर आज हम लोग के साथ शेयर करेंगे और कैसे इस कोविड-19 पीरियड में और कोविड-19 के बाद कैसे हम लोग करिकुलम एडाप्टेशन कर सकता है और करिकुलम एडाप्टेशन करके डिसेबल बच्चा को हम लोग हेल्प कर सकते हैं। वो लोग का जो अचीवमेंट है, वो लोग का जो नॉलेज गेन करना है, वो लोग को जो स्किल डेवलपमेंट करना है, इसमें हम लोग का जो मुख्य वक्ता है सर को हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग का रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर मैडम को वेलकम करते हैं। मैडम। Yes, thank you, sir. Thank you. हाँ मैडम। Okay, thank you, sir. Thank you so much. Good morning to everyone. I'm very delighted to have been given this opportunity to extend my warm welcome to everyone here in the webinar on the topic curriculum adaptation in imparting skilling for persons with disabilities during and post COVID-19. So now, as we begin, I would like to wholeheartedly welcome our respected Dr. Himanshu Das, Director in IPVD Dehradun. Sir has been actively dedicating his life for the empowerment of persons with disabilities and has been a role model for many in the field of education and rehabilitation of persons with disabilities. Nevertheless, to mention his minute-to-minute guidance and support in organizing this webinar, and we are very fortunate to have been working under his guidance. We welcome you, sir. And now I would like to extend the most sincere welcome to our resource person on today's topic, Mr. B. Nageswar Rao, who has been working in the field of disability and special education for more than 20 years and is currently working as an assistant director, AYJ, National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Kolkata. We are very fortunate and humbled by your presence, sir. Thank you. Continuation. Thank you, sir. I would like to mention a few that rather than panicking due to the non-functioning of offline skill training programs for persons with disabilities, let us take this as an opportunity to explore more on the other available adaptive approaches and enhance skills during this pandemic, which can be further carried on after the COVID-19 pandemic. So I hope we all will surely be benefited from this webinar. Thank you all. And now I would like to hand over to Mr. Farhad, coordinator of this program. Thank you. Okay, thank you मैडम, थैंक यू। अब हम लोग स्पीकर सर हैं, सर को वेलकम करते हैं और सर
अभी आप शुरू कीजिए सर प्लीज। Okay, thank you very much. Thank you very much. you, sir. On behalf of, Welcome, sir. I thank Director Dr. Himanshu Kumar sir and the coordinator and Director in charge of the CRCC Kim and also coordinator of this program for giving me this opportunity to share my some experience and talk on the topic curriculum adaptation in regards to disabilities during COVID and post-COVID scenario. So, curriculum adaptation in imparting skills for persons with disability during and post-COVID-19. So, we have already know the COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education system in history, affecting nearly 1.6 billion learners in more than 190 countries and all continents. So closure of schools and other learning spaces have impacted 94% of the world student population and up to 99% in low and lower middle income countries. So same way in India हम भी देख रहे हैं हमारे भारतवर्ष में भी जो कोविड-19 पैंडेमिक लगभग 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और शुरू में तो हम लोगों को इतना अनुभव नहीं था, अदर कंट्रीज को देख करके हम लोगों में एक तरह का भय था। We all scared about what will happen in next. So धीरे धीरे हमें भी एक्सपीरियंस हुआ है किस तरह से अफेक्ट हुआ हमारा day to day life of every human being, including their education and their social life, so totally disrupted. So the crisis in celebrating pre-existing education disparities by reducing the opportunity for many of the most vulnerable children, youth and adults, those living in poor or rural areas, girls, refugees, persons with disabilities, and forcibly displaced persons to continue their learning. So in India also, in very many states, we can say in villages and all schools where availability of electronic devices and जहाँ पर संभव हो सका है वहाँ एजुकेशन कंटिन्यू किया जा सका है, बट कई मैक्सिमम एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि हमको ये सब करना मुश्किल हुआ है, अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं. सो दिस इज द वी कैन से ड्रॉबैक ऑफ आवर this scenario. So learning loses also threatened to extend beyond this generation and erase decade of progress, not least in support of girls and young women educational access and retention. So there are so many losses, we can say. Learning जो हम classroom में learning atmosphere जो होता है बच्चों का और टीचरों के बीच जो we can say relation है या फिर coordination है, वो चीजें हम मिस कर रहे हैं बिकॉज ये तो वया मीडिया के थ्रू हो सकता है जो ऑनलाइन क्लासेस जहाँ जहाँ संभव है, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेटेड एरियाज जो है हमारा वो ये सारी चीजें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं बिकॉज लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन से लैक ऑफ गैजेट है, सभी के पास स्मार्टफोन, मोबाइल्स या लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, सो ऑनलाइन क्लासेस वहां पे संभव नहीं है. तो सम 23.8 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम प्री प्राइमरी टू टर्शरी may drop out or not have access to school next year due to the pandemic's economic impact alone, and similarly the education disruption has had and will continue to have substantial effect beyond education. So closures of educational institutions hamper the provision of essential services to children and communities, including access to nutritional food, affect the ability of many parents to work and increase risk of violence against women and girls. So first priority, जैसे अब pandemic है, लोग बीमार हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो priority होता है उनका to earn something and to live their life. So education is come later, है ना, बाद में आता है. तो ये चीजें जो है first of all they have to हम अपना डेली लाइफ जीने के लिए उनको जो अर्निंग सोर्सेज है वो यदि नहीं कर पा रहे हैं, स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या एजुकेशन की बात हो या एकेडमिक लर्निंग की बात हो, तो ये थोड़ा सा पीछे होना संभव है. और हमारे जैसे इंडिया कंट्री में जहाँ पर कि
we can say education and poverty ज़्यादा है comparative to other countries, so ये हमको देखने को मिलता है. So मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ. You can see here, sorry, इसमें आप देख सकते हैं children and youth out of school due to COVID-19 closure, 59% and 267 million. यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि चिल्ड्रन एंड यूथ आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल को छोड़ना पड़ गया है और क्लोज हो चुका है, इस तरह का पॉपुलेशन इन वर्ल्ड में 89% पॉपुलेशन इस तरह हुआ है, जिसमें 1.52 बिलियन जो है चिल्ड्रन एंड यूथ शामिल हैं, और जिसमें इंक्लूडिंग गर्ल्स मैक्सिमम है जो 743 मिलियन. एंड सेम वे यंग पीपल क्लासिफाइड एज नीट and EET means not in education, employment or training. So they are not in education, employment or training due to this COVID pandemic. So 267 million, ये पूरा across the world WHO का जो study है उसके accordingly मैंने आपको बताने का कोशिश किया है. So this is okay. I go proceed to next slide. So on the other hand, because this crisis has stimulated innovation within the education sector, we have seen innovative approaches. In the last slide, I think I have. So closure of educational institution hamper the provision of essential services to children and communities, including access to nutrition, food, affect the ability and many parents to work. ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका बच्चों के साथ जो एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे थे वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हुआ है ड्यू टू दिस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन. ऑन अदर हैंड, द क्राइसिस हैज स्टिमुलेटेड इनोवेशन विद इन द एजुकेशन सेक्टर. वी हैव सीन इनोवेटिव अप्रोचेस इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंटिन्यूटी फ्रॉम रेडियो एंड टेलीविजन टू टेक होम पैकेजेस. तो ऐसा नहीं है कि पूरा रुक गया है, एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पा रहा है, बट कंट्रीज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है डेवलप्ड कंट्रीज में, और एजुकेशन सेक्टर में भी जहां जहां यूज हो रहे थे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ऑनलाइन इंटरनेट एंड ऑल, सो दे हैव इमीडिएटली कंटिन्यू किया उन्होंने एजुकेशन सपोर्ट देने के लिए, थ्रू रेडियो हो या टेलीविजन हो या फिर टेक होम पैकेजेस, मीन्स घर पर रहकर जैसे मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनके माध्यम से वो ऑनलाइन इंटरेक्शन, सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन और लर्निंग रिसोर्सेज जो मीडियाज के थ्रू दे कैन कंटिन्यू. So other hand crisis है, but in other hand there is some innovation is also there in education sector which is supported some kind of innovative approaches, है ना. So उसमें adapted किया गया है कुछ में, और कुछ में as it is दिया गया. So distance learning solutions were developed thanks to quick responses by government and partners all over the world supporting education continuity. So पहले डिस्टेंस लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट शुरू से था हमारे इंडिया में भी, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स है जो ओपन स्कूलिंग या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं सभी स्टूडेंट्स को जो फॉर्मली नहीं कर पाते हैं ड्यू टू शायद हो सका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन ऑप्शन था. तो वही डिस्टेंस एजुकेशन अभी ऑल ओवर वर्ल्ड, वी कैन से ऑल ओवर कंट्री में अभी हाल फिलहाल आज की डेट में भी ही चल रहा है, सब जगह लॉकडाउन है. सो ये चीजें जो है डिस्टेंस मोड में हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं. सो वी हैव आल्सो बीन रिमाइंडेड ऑफ एसेंशियल रोल ऑफ टीचर्स एंड द गवर्नमेंट and other key partners have an ongoing duty of care and education personnel. So we train professional in the area of, we can say, disability hai, ya fir professionals working in the government sector, or we can say what the profession in special teaching. So हम लोग का रोल बढ़ जाता है. So we have more challenges than the normal, because disabled बच्चों को पढ़ाना एक तरीके का ऑनलाइन मोड में some kind of difficult tasks, but we are accepting the challenge. But these changes have also highlighted that the promising future of learning and the accelerated changes in mode of delivering quality education. So we day by day trying our best to impart our education to disabled also through online mode. So this is true for children and youth affected by a lack of resources or enabling environment to access learning. It is true for that teaching profession and their need for better training in new method of education delivery as well as support. So this is true. Children and youth
डेफिनेटली इफेक्ट है लैक ऑफ रिसोर्सेज के, कि ओवरऑल कंट्री में हम लोग नहीं कर पाते हैं ये चीजें। सो जहाँ जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है वो कर पा रहे हैं, इनेबल दे आर विथ एनवायरमेंट, बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड इन सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंट्री और रूरल एरियाज, विलेजेस में, जहाँ पर नेटवर्किंग और इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से और गैजेट and financial problem hai. So the shock of COVID-19 crisis on education has been unprecedented. It has set the clock back on the attainment of international education goal and disproportionately affected the poorer and most vulnerable. And yet the education community has proved resilient, laying a groundwork for the rebound. So COVID-19 होने से ऐसा चीज हो गया जहां कि हमको शुरुआत से ही करना पड़ा, जहाँ पे स्टॉप हो गया, एजुकेशन नहीं कर पा रहे थे लोग ड्यू टू 3 महीना लॉकडाउन है, कुछ नहीं, नथिंग हैज बीन हैपन। सो उनको फिर से स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दे हैव टू स्टार्ट इट। देयर रिमेन अ रिस्क ऑफ अ डाउनलोड स्पाइरल इन अ नेगेटिव फीडबैक लूप ऑफ लर्निंग लॉसेज एंड एक्सक्लूजन। तो जहाँ अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो डाउनवर्ड स्पाइरल मीन्स वो पीछे की तरफ ही मुड़ना पड़ रहा है उनको। फीडबैक नेगेटिव है, लूप ऑफ लर्निंग लॉसेज एंड एक्सक्लूजन। तो वो एक तरह की सोसाइटी से या एजुकेशन जो एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, उससे एक तरीके से वो अलग हो चुके हैं। सो नाउ इट्स नीड इंक्लूसिव चेंजेस इन एजुकेशन डिलीवरी और potential of individuals and of collective fulfillment in all areas of life through education investment. So यहाँ पे जरूरत है कि सारी चीजें इंक्लूड करने की इन एजुकेशन डिलीवरी ऑफ रिलीजिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स बच्चों का अपना कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे हम स्पेशल बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड हैं या फिर इंडिविजुअली अफेक्टेड चाइल्ड विद देयर फिजिकल और इंटेलेक्चुअल। सो हम उनको साथ लेकर के काम करना है ऑल एरियाज ऑफ लाइफ थ्रू एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। किस तरह से हम इम्पार्ट कर सकते हैं it's in a challenge scenario. So I think able to see this slide जहाँ पर हम बताने की कोशिश किया है कि कोविड-19 एंड चिल्ड्रन इनमें क्या प्रॉब्लम हुआ। जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन, पेरेंट्स का पहले से पहला दायित्व हो जाता है, उनका अटेंशन होता है कि हम बच्चे को बचाना है इस एटमॉस्फेयर से, बच्चे को बाहर नहीं भेजना है, तो प्रोटेक्ट करना है, को कहीं वायरस इनको इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो उस पर ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स का ध्यान होता है, टीचरों का ध्यान होता है। और एजुकेशन, जहां पर एजुकेशन बंद हो चुका है उसको फिर से रिमोट एरियाज में लर्निंग, स्कूल रीओपनिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर क्राइसिस। और सेकंड हो जाता है कि एजुकेशन के लिए क्या काम करना है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि दीज आर द रिसर्च एथिक्स, जो चैलेंजेस हैं कि स्टडी करने की जरूरत है, इस पे स्टडी कर करके हम बता सकते हैं कि हाँ इस एरियाज में ये चीजें अफेक्टेड हैं, देन वी कैन मूव टू how to problem we can overcome the kind of problem. So first child protection कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन जहाँ क्लोज हो चुके हैं उनको कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। और सोशल प्रोटेक्शन जहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू जो सोशल गैदरिंग्स है वो सब चीजें बाउंड हो गई हैं ड्यू टू कोविड-19 में, जो बोला गया है कि डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। सो सोशल प्रोटेक्शन वहाँ पे ज्यादा दिया जाना, लाइक कई कल्चरल एक्टिविटीज हैं, कई गैदरिंग्स हैं, सोशल एक्टिविटीज हैं, तो वो सब चीजें दूर हो चुकी हैं, उस पर भी ध्यान देना हो सकता है। एंड चाइल्ड वेलबींग, किस तरीके से बच्चों को अपना वर्क या फिर हाउ स्कूल ऑब्जर्व इम्पैक्ट वेलबींग, तो चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस को गैदर करके वो बता सकते हैं कि हाँ चाइल्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इफेक्ट है, क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, एंड उसके एविडेंसेस सिंथेसिस पे काम किया जा सकता है। एंड चिल्ड्रन ऑनलाइन जो आजकल हैं उसमें कितना अफेक्टेड है एजुकेशन, कितना अफेक्टेड है देयर फिजिकल मूवमेंट, हाउ मच अफेक्टेड दे आर इंटेलेक्चुअली विद दिस बॉन्डिंग। एक रूम में बंद कर दिया गया उनको जैसा, और दिन भर यदि क्लास चलेगा तो उनका जो सोशल लाइफ तो दूर हो गया है, बट फिजिकल जो उनको खेलने कूदने का जो अवसर मिलता था वह भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। एंड जेंडर एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्सेस, सो जेंडर्स मीन्स मेल फीमेल में भी ऐसा कुछ
यदि स्टडी किया जा सकता है कि कौन ज्यादा अफेक्टेड है कौन नहीं है, so that can also be one kind of ethics, research ethics is possible. So this is the then disabled students have unique educational need. We all know disabled, whether he is mentally retarded, visual impairment, hearing impairment, or other locomotor disabilities, they have their unique educational needs. So their disability can and often does impact all instructions that uses language as a base. So disability accordingly, they have their language boundings, they have language improvements, and students with disabilities need some special adaptations. हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, all are I think professionals, teachers are in this group जो अटेंड कर रहे हैं आज का मीटिंग. सो वी नो कि स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज को यदि हम स्पेशल एजुकेशन देना है या फिर स्पेशल सोशलाइजेशन करना है, तो some kind of adaptation we have to need to impart in our atmosphere, we can say. So that is accommodation and modification. ये दोनों तरीके के जो हैं इनको इंक्लूड करना जरूरी है अडॉप्ट करने के लिए. So using these accommodation and modification helps disabled students to learn in general education classroom. जब हम क्लासरूम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, accommodation और modification, two aspect we can say of the adaptation. Defining different types of adaptation. मैं यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा. There is a difference in types of adaptation, accommodations and modification that are used in classrooms. So let's start by defining both of them. Accommodation focus on how students access and demonstrate learning. Accommodation do not significantly change the instruction level, content or the performance criteria. The changes in process are made to provide a students equal access to learning and equal opportunity to demonstrate what they know. So for example, for the standard, the students read effectively to understand a variety of material. So वहाँ पर हम appropriate accommodation include कर सकते हैं, preferring their sitting arrangements, we can say, acoustic treatment of a room, use of an interpreter to explain the instruction for reading assessment. In case of hearing impaired, यदि deaf बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो वहाँ पे interpreter का accommodate करना जरूरी है. Then extend time limits, time को हम ज़्यादा देना पड़ता है because some concept को clarify करना है तो deaf बच्चों में या disabled बच्चों में थोड़ा सा time ज़्यादा देना पड़ता है. Allowing students to sign their responses to an interpreter. So these are the accommodation. जहाँ पे हम environmental जो inputs है उसमें हम changes लाना जरूरी होता है. It's a type of accommodation adaptation. और second है modification type of adaptation, जहाँ पर हमको modifications substantially changes what students are expected to learn and demonstrate. These changes are made to help students participate meaningfully and successfully in learning. So yeah, examples of modification for standard: the students reads effectively to understand a variety of material might be to allow the student to read a passage at a much lower grade readability level, or to use an interpreter to sign entire reading passage to. मतलब यहाँ पे यहाँ बोलने का मतलब है reading as per their intellectual level. Suppose class 5 में एक बच्चा पढ़ रहा है, नॉर्मल बच्चों का जो सिलेबस है उसको हम डेफ बच्चों को साथ एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. One standard lower reading material we adopt for the standard 5th child. Okay, so modification means थोड़ा सा modify करना है passages को, इसको हम डिटेल बताएंगे. Just some adaptation, what we can say regarding adaptation. So I am just showing this slide by zooming. Adaptation में mainly जैसे मैं बताया, curricular means जो हम पढ़ने का content है उसको किस तरीके से modify करना है. Second, instructional means adapt how it is taught and how learning is demonstrated. And ecological adapt means वहाँ पे arrangement, environmental input, adapt the settings, where and when and with whom. ठीक है, these are the adaptations. So curricular adaptation, what we taught means we can say इसको फिर bifurcate किया गया है, like supplementary add social, communication, study और processing skills to general curriculum. ठीक है ना. Then simplify, जैसे कुछ difficult task लगता है, concept लगता है तो उसको simplified किया जा रहा है. Change level of difficulty और include और objectives. ठीक है. अभी कुछ बड़ा स्टोरीज है जो सपोज हिस्ट्री में एग्जांपल बताता हूँ मैं कि कुछ हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो सिविलाइजेशन एक बहुत ही लंबा थ्योरी हो सकता है फॉर क्लास 6.
उसी को हम थर्ड क्लास में पढ़ाना है तो सिंप्लीफाई कुछ सेंटेंसेस लुक करके या फिर जस्ट पिक्चर और सेंटेंस के थ्रू बताना, तो वेरी सिंप्लीफाइड मोड ऑफ टेक्स्ट हम यूज करते हैं. Another alternative means teach functional skills plus embedded social communication and motor skills. So these alternatives we have to made in the curriculum. And same way instructional जब हम वहाँ पे पढ़ाना teaching method we can say, यहाँ curricular हो गया आपका content में क्या modify करना है, ठीक है. Instruction what teaching methodology में हमको adaptation करना है, like instructional stimulus और input, हम किस तरीके का input देना है सामने बच्चे के लिए. सो डिफिकल्टी, अमाउंट ऑफ मॉडलिटी, बच्चा क्या डिफिकल्टी फेस कर रहा है या फिर उसका स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी ही हैज, यदि पार्शियली ब्लाइंड है तो उसके लिए हमको कैसा इंस्ट्रक्शनल एटमॉस्फेयर देना चाहिए, इनपुट कैसा होना चाहिए. पार्शियली वी कैन से मॉडरेट लेवल का इंटेलेक्चुअल बच्चा है मेंटल रिटार्डेशन है, सो उनके लिए हमको किस तरीके का इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी देखना. तो ये ऑल एजुकेशन में हम बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में all teachers know how to adopt this kind of instructional strategies. And same way student response और output, बच्चों का जो रिस्पॉन्स हो रहा है उस पर एक फीडबैक मिलता है टीचर्स को कि उसके अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शनल मेथड को अडॉप्ट करना. ओके. और थर्ड जो मैं बता रहा था कि एटमोसफियर जो इकोलॉजिकल है, वो हम किस प्लेस में अडॉप्ट द प्लेस, विच प्लेस इज मॉडल प्लेस टू टीच दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन, अडॉप्ट द शेड्यूल, वो किस तरह मतलब किस समय में बोलना चाहिए और किन बच्चों के लिए बोलना चाहिए. तो अडॉप्ट स्टार्टिंग ग्रुपिंग. सो टीचर्स वी कैन से ट्रेन टीचर्स, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड है या फिर म्यूजिक का है, सो उसके लिए कौन सुटेबल टीचिंग पार्टनर होगा, टीचर्स कौन होगा. सो वी कैन डिसाइड दैट काइंड ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशन. सो यहाँ पे स्टेजेस में बताने की कोशिश करता हूँ, स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन. तो जो एडेप्टेशन किया जाना है, फर्स्ट इज जनरल एडेप्टेशन, लाइक ब्लूप्रिंट और फॉर्मल्स, blueprints or formats for adapting predictable activities and routines. पहला जनरल एडेप्टेशन है कि हमको उसके ब्लूप्रिंट एक तैयार करना है या फॉर्मेट तैयार करना है कि हम कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसको रूटीनली बेसिस पे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अडॉप्ट कर सकते हैं. और सेकंड स्टेज है स्पेसिफिक एडेप्टेशन, टाइम लिमिटेड एडेप्टेशन फॉर अ पर्टिकुलर लेसन, एक्टिविटी और यूनिट. ओके, सो आई विल गो फॉर डिटेल फॉर दिस स्टेप्स, स्टेज एंड स्टेज 2. सो आई मूव टू further slide. Let's look at some adaptation in the general education class. Now that we have discussed what your role in define the different adaptation you use. Okay, so as per screen में आप देख पा रहे हैं शायद, एक यहाँ पे चार्जर के पिंस दिए हुए हैं जो अलग अलग वेराइटीज के हैं और उसको जो इनपुट दिया जा रहा है एक सोर्स से दिया जा रहा है. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब डिसेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी kind of disabilities are available and उनका मेथड वी कैन से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज भी अलग होता है. यदि जनरल क्लासरूम की हम बात करें तो वहां पे भी ऐसे इंटेलेक्चुअल बच्चों में डिफरेंशिएट देखने को मिलता है. जैसे हमारे क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में कोई जरूरी नहीं है वहां पे रैंक 1 to 50 होता है ना. सारे बच्चे फर्स्ट तो रैंक नहीं कर सकते. तो एज पर देयर कैपेबिलिटी, एज पर देयर परफॉर्मेंस लेवल, एज पर देयर वी कैन से फिजिकल और स्ट्रेंथ और मेमोरी, all depends each child individually. So उसके हिसाब से जो टीचिंग प्रोग्राम है या फिर जो हमको एडेप्टेशन किया जाना है विद इन क्लासरूम, या फिर टॉपिक है, कंटेंट है, या फिर वी कैन से मेथोडोलॉजी, ऑल आर डिपेंड अपॉन द मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को, कंटेंट को, मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई करें या फिर अडॉप्ट करें. ऐसा अडेप्टेशन करना जरूरी है जो बच्चे के लिए सुटेबल हो एज पर देयर रिक्वायरमेंट. सो दिस इज एडेप्टेशन क्यों करना जरूरी है, ये एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल एडेप्टेशन. सो कुछ प्रिंसिपल्स भी ड्रॉ किए गए हैं एज पर ग्रांट 1987 हैज लिस्टेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल फॉर मटेरियल एडेप्टेशन, लाइक मेकिंग डायलॉग्स कम्युनिकेटिव, जो कुछ भी बोलना है वो कम्युनिकेटिव होना ज्यादा जरूरी है. मेकिंग लर्निंग एक्टिविटीज रिलेवेंट एंड पर्पसफुल, जो भी एक्टिविटीज हो बहुत ही रिलेवेंट और पर्पसफुल होना चाहिए. मीट योर लर्नर्स नीड बोथ एक्सटर्नल एंड साइकोलॉजिकल, जो आपकी लर्निंग नीड्स हैं, लर्नर की नीड्स है वो सेटिस्फैक्टरी लेवल में होना चाहिए, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल हो या फिर एक्सटर्नल. यूज मॉडल्स ऑफ रियल ऑथेंटिक लैंग्वेज, जो कम्युनिकेटिव, जो मतलब सिंपल वर्ड. ऑथेंटिक लैंग्वेज मीन्स जो बच्चों के लेवल के हिसाब से सुटेबल हो, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाना.
और जो रियल ऑब्जेक्ट्स है उसके थ्रू उनको टीच करना. So these are the some kind of principle we have to adapt जब हम मटेरियल डिसाइड करते हैं फॉर टीचिंग दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन. सो लेवल ऑफ मटेरियल एडेप्टेशन, यहाँ पे 3 लेवल दिए गए हैं. मैक्रो एडेप्टेशन, adapting a unit, and adaptation of specific activity. Macro adaptation क्या होता है? This is ideally done before the language program begins, after comparing what is covered in a textbook and what is required by the syllabus or examination. The teacher may find that certain areas or even whole units of the book can be omitted and certain contents need to be supplemented. मैक्रो एडेप्टेशन मतलब एक जो हमारा टेक्स्ट बुक है जिसमें पूरी चीजें सिलेबस कवर की गई हैं, उसको हम किस तरीके से कट आउट करना है, या फिर उसमें क्या क्या चीजें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सप्लीमेंट करना है एज पर कंटेंट को, और कंटेंट को कहाँ कहाँ ओमिट करना जरूरी है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा रिलेवेंट है, दैट हैज टू बी केप्ट. So macro adaptation is very important because it helps to avoid waste of time and energy of teacher and the student as well. It also helps the teacher to see in advance what he or she needs to supplement so that he or she can keep an eye on material that could be used. Okay, so ज़्यादा time waste ना हो और teacher का energy ना waste हो, उसके लिए मतलब बच्चों को जो specific एक टॉपिक को जो सिंप्लीफाई करके समझाया जा सकता है वो टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए, वो मेथड अडॉप्ट करना चाहिए. दिस इज कॉल्ड मैक्रो एडेप्टेशन. नेक्स्ट है अडॉप्टिंग अ यूनिट. जब हम कंटेंट में कोई यूनिट को चूज करना है, दिस कुड बी रीऑर्डरिंग द एक्टिविटीज, कंबाइनिंग एक्टिविटीज, ओमिटिंग एक्टिविटीज, रीराइटिंग और सप्लीमेंटिंग एक्सरसाइज मटेरियल एटसेट्रा. जहां पर हम कुछ एक्टिविटीज है बहुत लेंदी है तो उनको हम ओमिट कर सकते हैं, और कुछ एक्टिविटी हैं जो कि दोनों तरफ से वी कैन से ओवरलैपिंग है, तो उसको हम कंबाइन करके एक्टिविटीज को बता सकते हैं. रीराइटिंग और सप्लीमेंटिंग एक्सरसाइजेस मटेरियल, तो जो बार बार रीराइट हो रहा है उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं विद सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज मटेरियल. यूनिट एडेप्टेशन हेल्प्स टू मेक द क्लासरूम टीचिंग मोर स्मूथ एंड कोहेसिव. इट आल्सो हेल्प्स द टीचर टू बेटर फुलफिल द एम ऑफ अ यूनिट. सो ये टीचर को हेल्प करता है क्लासरूम टीचिंग में मोर स्मूथ एंड कोहेसिव होने के लिए, एंड इट आल्सो हेल्प द टीचर टू बेटर फुलफिलमेंट ऑफ एम ऑफ द यूनिट, है ना. पर्टिकुलर एक यूनिट में क्या बताना है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो अचीव करने के लिए हमको अडेप्टेशन यूनिट में जरूरी होता है. एक और है जो मेथड वी कैन से अडॉप्टिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज. उसको जो मैक्रो एडेप्टेशन किया है उसमें जो यूनिट को चूज किया है, उस यूनिट में हम क्या स्पेसिफिक एक्टिविटी के माध्यम से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बच्चों में समझा सकते हैं, उसके लिए जरूरी होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी का एडेप्टेशन करना. सो ओकेशनली एन एक्टिविटी इज रिगार्डेड एज वैल्यूएबल बट इट इज नॉट वेल डिजाइन और इट इज नॉट फिजिबल इन अ पर्टिकुलर क्लास. कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो, बट इज नॉट वेल डिजाइन और इट नॉट फिजिबल इन अ पर्टिकुलर क्लास. तो ये डिफरेंशिएट हो सकता है, इसलिए स्पेसिफिक एक्टिविटी हमको अडॉप्ट करना जरूरी है फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ क्लास, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास के लिए. इफ द टीचर डज नॉट वांट टू गिव अप द एक्टिविटी ही और शी नीड टू अडॉप्ट. उसको लेंदी कराने के बदले वो एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर सकता है और शॉर्ट टर्म करने के लिए. और स्पेसिफिक एडेप्टेशन जिसमें क्राइटेरिया वी कैन से सजेस्ट किया है कि क्या क्या चीजें हम मटेरियल में अडॉप्ट किया जा सकता है. इट्स अकॉर्डिंग टू मैले एंड टॉमिल्सन 1998 में बताया था उन्होंने, सजेस्टेड द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर मटेरियल एडेप्टेशन. सो ये नॉट ओनली टीचिंग इन क्लासरूम में बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है. अब एडेप्टेशन वी कैन से इन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पार्टिंग स्किल्स, जैसे हमारा टॉपिक का आज कॉमन टॉपिक दिया गया इम्पार्टिंग स्किल्स. नॉट करिकुलम एडेप्टेशन फॉर टेक्स्ट के लिए, बच्चों का क्लास 1 से क्लास 12 तक या फिर कॉलेज लेवल में जो करिकुलम है उसमें एडेप्टेशन की बात ना सीमित रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो इम्पार्टिंग स्किल्स है, जैसे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वी कैन से आईआईटी लेवल के जो आईटीआई लेवल के जो ग्रास रूट ये वर्कर्स के लिए जो काम होते हैं, और जो ट्रेनिंग नॉट प्रोफेशनल इन डिफरेंट वे जहाँ पे अर्निंग रिसोर्सेज ज्यादा जरूरी है, उनके लिए लिमिटेड ट्रेनिंग है, जैसे बुक बाइंडिंग है, टेलरिंग है, कारपेंट्री है. ये जो डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं जहाँ पे वोकेशनल यूनिट्स वी कैन से, जहाँ पर हम डिसेबल्स को यदि वो फॉर्मल वे में एजुकेशन नहीं कर पाते हैं तो वी मूव देम टू वोकेशनल ट्रेनिंग.
तो वहां पे भी जो टीचिंग मेथड है या फिर टीचिंग इंस्ट्रक्टर्स है, दे कैन आल्सो अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ specific adaptation. जैसे टीचर लीव आउट थिंग्स डीम्ड इनएप्रोप्रिएट, ऑफेंसिव, अनप्रोडक्टिव एक्सेट्रा फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप. कुछ चीजें हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है और प्रोडक्टफुल नहीं है, तो वो चीजें वो एमिट कर सकते हैं, है ना, जिसका इम्पोर्टेंट वो समझाने का मतलब वो आउटडेटेड हो गए हैं या फिर ओल्ड वी कैन से ओल्ड मॉडल है, आउटडेटेड मॉडल्स हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं. Addition, where there seems to be inadequate coverage, teachers may decide to add to textbook either in the form of text or exercise material. है ना, कुछ नई चीजें हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है बट बताना जरूरी है. सो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अडॉप्ट करना जरूरी है ऐसी चीजों को ज्यादा. Where there seems to be inadequate coverage, teacher may decide to add to textbook. है ना, कुछ चीजें हैं जैसे अभी कोविड-19 के बारे में हम जैसे वायरस के बारे में कभी पढ़ा नहीं था, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं रहा, लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा हमको वी कैन से हमको मजबूर कर देगा कि हम ये चीजें पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है कि हाँ ये वायरस क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है, या फिर क्या सिनेरियो अभी इस पेंडेमिक को से ओवरकम करने के लिए है. ये किसी टेक्स्ट बुक में नहीं आई थी. अभी धीरे धीरे ये चीजें टॉपिक आजकल बच्चों में भी और बताने का जरूरत है, इन सोसाइटी में बताने का जरूरत है. सो दिस काइंड ऑफ एडेप्टेशन इज वी कैन से एडिशन. ये बताना जरूरी है समय के चलते, तो हमको ये स्पेसिफिक एडेप्टेशन करना जरूरी होता है. रिडक्शन, वेयर द टीचर शॉर्टन एन एक्टिविटी टू गिव इट लेस वेट और इम्फेसिस. जहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता उस एक्टिविटीज को शॉर्ट करना, है ना. अभी जैसे कोई स्किल सिखाया जा रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग में, जो छोटी सी एक्टिविटी करके वो चीजें बना सकते हैं, तो उसके लिए लर्निंग प्रोसेस करने का जरूरत नहीं, है ना. कुछ मॉडल हैं जैसे अभी कोई चेयर टेबल बनाने का वोकेशनल ट्रेनिंग है और चेयर टेबल बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमको पेड़ से लकड़ी काट कर से शुरुआत करना है ना. अभी वो प्लाईवुड्स ऐसे मिलते हैं बाजार में बने बनाए हैं, जो उसको लेकर के दे कैन स्टार्ट देयर वर्किंग टू मेक द टेबल एंड चेयर. तो दिस काइंड ऑफ रिडक्शन वी कैन से शॉर्ट किया जा सकता है एक्टिविटी को लेंथी से कम करने के लिए. एक्सटेंशन, वेयर एन एक्टिविटी इज लेंथन इन ऑर्डर टू गिव इट एन एडिशनल डायमेंशन. फॉर एग्जांपल, अ वोकैबुलरी एक्टिविटी इज एक्सटेंडेड टू ड्रॉ अटेंशन टू सम सिंटैक्टिक पैटर्नरी. जहां पर ग्रामेटिकली हम कुछ बताना चाहते हैं तो वोकैबुलरी एक्टिविटीज को हमको एक्सटेंड करना पड़ता है ताकि बच्चे को पूरा सिंटैक्टिक पैटर्न को लर्न कर सके. पैराग्राफ में जो सिंटैक्टिक पैटर्न है वो समझाने के लिए हमको वोकैबुलरी एक्टिविटीज को डिफाइन करना जरूरी होता है. तो दैट इज एक्सटेंशन. कुछ ज्यादा समझाने का जहाँ जरूरत पड़ता है. सेम वे रीराइटिंग एंड मॉडिफिकेशन. टीचर में occasionally decide to rewrite material, especially exercise material, to make it appropriate, more communicative. Okay, replacement text or exercise material which is considered inadequate for whatever reason may be replaced by more suitable material. This is often called from other resource material. मतलब उसको replace कर सकते हैं, ये suitable नहीं है आज के समय में, जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सम काइंड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. रीऑर्डरिंग, टीचर में डिसाइड द ऑर्डर इन विच द टेक्स्ट बुक आर प्रेजेंटेड इज नॉट सुटेबल फॉर देयर स्टूडेंट. दे कैन देन डिसाइड टू प्लॉट अ डिफरेंट कोर्स. ओके, सेम वे ब्रांचिंग, टीचर में डिसाइड टू ऐड ऑप्शंस टू द एक्सिस्टिंग एक्टिविटी और टू सजेस्ट अल्टरनेटिव पाथवे थ्रू द एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल, एन एक्सपेरिमेंटल रूट और एन एनालिटिकल रूट, है ना. कोई चीजें बताने के लिए जैसे हम ब्रांचेस मींस, अभी मैंने जैसे एडेप्टेशन का आपको फॉर्मेट दिखाया है कि ये चीजें होती है, तो ज्यादा विजुअलाइज जो होती है वो समझने में आसान होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ थियोरेटिकल. ओके, सो दैट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन वी कैन से वो अडॉप्ट किया जा सकता है. और अडॉप्ट करने के समय क्या हमको नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ दिया हुआ है. डोंट्स इन मटेरियल एडेप्टेशन, टीचर शुड नॉट अडॉप्ट मटेरियल टू कैजुअली, है ना, बेस्ड ऑन हिज और ओन प्रेफरेंस और टेस्ट. तो जो सुटेबल है एज पर कंटेंट है वही मटेरियल अडॉप्ट करना है, कैजुअल नहीं होना चाहिए. मटेरियल एडेप्टेशन शुड नॉट बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द मटेरियल. किसी तरह से काम खत्म करने के लिए वो एडेप्टेशन मटेरियल का नहीं होना चाहिए. मटेरियल डिलीटेड और एडेड should not go beyond a reasonable proportion, otherwise consider alternate material. Teacher should not adopt material only to cater for the need of exam or test, है ना. Only examination point of view या फिर एक test की point of view से ऐसा
मटेरियल तैयार नहीं, मतलब एक क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ा दिया, उसका सिलेबस हो गया, नॉट कंसिडरिंग दैट काइंड ऑफ, पूरा कंटेंट जो है उसको समझाना जरूरी है। सो उस तरह का एडेप्टेशन मटेरियल में होना चाहिए। ये हो गया आपका कंटेंट से रिलेटेड। अब इन्वायरमेंटल मीन्स लाइक सीट स्टूडेंट इन अ बेस्ट प्लेस टू परमिट अटेंडिंग एंड पार्टिसिपेशन। गिव स्टूडेंट इन अ स्विल चेयर मीन्स रिवॉल्विंग चेयर वी कैन से, या फिर व्हील चेयर, जहाँ पे बच्चे सुटेबली इन्वायरमेंट में बैठ करके सीख सकते हैं। यूज अ सेमी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, reduce noise and re-vulnerable with carpeting, drapery, acoustic ceiling tiles and acoustic walls treatments। मतलब reducing noise, जैसे हम डेफ बच्चों की बात है जहाँ पे डिसेबल्स हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वहाँ पे नॉइस ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रिन्यूएबल मीन्स इको पैटर्न का साउंड नहीं होना चाहिए, और ऐसे कर्टन एंड टाइल्स जो हम यूज करते हैं वो ज्यादा होना चाहिए ताकि बाहर से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा ना हो। सेम वे यूज फ्लैशिंग लाइट्स अलोंग विद बेल्स एंड सिग्नलिंग क्लास शेड्यूल्स। हाँ, जहाँ पे हम ये एक्चुअली एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, डिसेबल्स में हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके लिए सूटेबल है। जैसे हर एक क्लासरूम्स में रिंग होता है नेक्स्ट पीरियड के लिए, सेम वे डेफ बच्चों के जो क्लासरूम्स में होता है वहाँ पे एक लाइट फ्लैश होती है जहाँ पे टाइम का सिग्नलिंग दिया जाता है। और जैसे अलार्म, सेफ्टी अलार्म से भी, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हियर, सो दे कैन ओनली हैव द विजुअल फीडबैक, सो विजुअली दे कैन अंडरस्टैंड बाय द अलार्म दैट मे बी फायर का हो या टर्नेडो है या कुछ कैजुअलिटी हो रहा है, तो उसके लिए सेफ्टी अलार्म्स लाइट के थ्रू देना है ना। साउंड तो उनको नहीं हो पाएगा इसीलिए, बट अदर डिसेबल्स में जैसे विजुअल है या फिर अदर दोज हु कैन हियर देयर साउंड के थ्रू हम अलार्मिंग दे सकते, दैट काइंड ऑफ एडेप्टेशन इन एनवायरनमेंट। सो अभी ड्यूरिंग कोविड वी कैन सी हियर, आप 2 पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे क्लासरूम्स को बनाया गया है, जहाँ पे फेस टू फेस क्लासरूम किया गया है, जहाँ पे बच्चे लोग मास्क लगाकर बैठे हैं, मेंटेनिंग डिस्टेंस, है ना। ये है पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव द गजेट लाइक कंप्यूटर और नेटवर्किंग, सो दे हैव टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट ड्यूरिंग कोविड। एंड दूसरी तरफ राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे बच्चों के पास, सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं और दे आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, दूर दूर बैठ करके वो लोग क्लास कर पा रहे हैं। सेम वे वो घर पे भी अभी कर रहे हैं, जैसे हम और आप अभी ये कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो this is the environmental adaptation we can say during COVID. Okay, or input, use a radio frequency transmissions unit FM stand where the student can read lips, face the students when talking, use an overhead projector, employ an educational interpreter, pre-teach important vocabulary and concepts, modify class schedule to reduce fatigue, provide a study guide of a key concepts, questions, vocabularies and fact when introducing new material, include page numbers where information can be found in the textbook। So ऐसी चीजें हैं जो modify we can say, modification है these are, तो ऐसे input देना जरूरी है जहाँ पे बच्चों को या फिर टीचर्स को very easy हो, हाँ, समझने। जैसे एजुकेशनल इंटरप्रेटर, दे आर द मीडिएटर टू इंटरप्रेट नॉर्मल जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको हियरिंग इम्पेयर्ड के बारे में हियरिंग इम्पेयर्ड सुन सके। सेम वे मॉडिफाई क्लास शेड्यूल, provide the study guide, key concept, questions, vocabularies, material में text, which is provide manipulative or multisensory hand-on instruction or activities। इस तरह का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन देने के लिए बहुत जरूरी है ये सारे इनपुट्स देना। ये फिजिकल क्लासरूम में ज्यादा पॉसिबल है, नॉट इन ऑनलाइन क्लासेस। सो these inputs modification is also needed for the curriculum adaptation। Same way input we can say provide a copy of teachers notes, जो नोट्स हम जैसे आप क्लास बता रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसका हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी सभी को सर्कुलेट किया जाए, तो इट्स मोर कन्वीनियंट टू द टीचर्स एंड टू द स्टूडेंट्स। हाईलाइट कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स इन प्रिंटेड मटेरियल, सप्लीमेंट लेसन्स विद विजुअल मटेरियल लाइक ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, चार्ट्स एंड वीडियोस। यूज ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रेजेंट मटेरियल, यूज कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, डेवलप सम काइंड ऑफ लर्निंग सेंटर्स, use game for drill and practices, write short summaries of the lesson or the chapters of the textbook, use a tutor, para-professional or volunteer to review work, important concepts, vocabulary and facts with the students।
use commercial softwares to provide practice and review material, use caption movies and television programs. So these are the inputs है, ये variety of skills disables हो या फिर in general भी हम adopt करने का जरूरी है? When modification or accommodation की बात है, these kind of accommodation we have to consider during training or planning. जो हम skills बच्चों को बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर ऐसे trainings दिया जा रहा है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को स्किल इंप्रूवमेंट करने का हो, तो ये सारे अकोमोडेशन प्रेफरेबली इंक्लूड करना जरूरी होता है. सेम वे शॉर्ट एंड लेंथ असाइनमेंट्स एंड प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस एंड टीच ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड असिस्ट स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज जनरलाइज दीज स्किल्स, टीच स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज. ये इनपुट देना ज्यादा जरूरी है बच्चों को, जब थ्रू टेक्स्ट बुक हो सकता है, हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल्स, ग्राफ, समरीज, दिस काइंड ऑफ adaptations. Provide duplicate sets of material for family use and review. Okay, have students summarize at the end of the lesson. So जो भी पढ़ाया जाता है या फिर सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको समराइज करना क्लास में बहुत जरूरी होता है for everyone. Use thematic instruction to unify curriculum. Okay, जब आउटपुट है तो allow more time to complete assignments. यदि हम, ये तो अभी तक इनपुट था जो हम लोग टीचर्स को देना जरूरी है ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन और एकोमोडेशन. ठीक है, अब जब हम जो पढ़ाया है या अडॉप्ट किया है वो कितना सुटेबल है बच्चों में या फिर ट्रेनीज में, उसको हम आउटपुट लेना भी बहुत जरूरी है. सो आउटपुट अलाउ मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, है ना. अभी जैसे हमने जो कुछ भी किया है फोर्सफुली नहीं रखना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. सो वी हैव टू गिव कंप्लीट असाइनमेंट्स के लिए टाइम देना. Allow students to make models, role play, develop skits, and create art projects to demonstrate their understanding of the information. Allow written and raw responses to serve. Okay, allow students to use computer, word processor. है ना, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हम उनको आगे मोटिवेट करना है. अभी तो आज का जो सिचुएशन है जहाँ पर दिस इज ओनली द ऑप्शन, जहाँ पे बच्चे लोग या गजेट के थ्रू ही वो लर्निंग कर पा रहे हैं. Use cooperative learning experiences to develop cooperative small group projects. Use peer tutorials, para professionals and volunteers to work with students on tasks. Okay, then social adaptation जहाँ पे जरूरी है. Teach hearing students to sign. If students use an oral approach, teach hearing students how to position themselves so that deaf or hard of hearing student can lip read. इनपुट देना सोशली भी बहुत जरूरी होता है कि हम अदर्स लोगों को कैसे एकोमोडेट करना है, सिखाना जरूरी है. तो मेक टेक्स्ट बुक्स अबाउट हियरिंग लॉस, डेफनेस अवेलेबल, इनवाइट डेफ एंड हार्ड ऑफ. ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं कि यदि हियरिंग इम्पेयर्ड पॉपुलेशन है तो उसमें सोशली मॉडिफिकेशन या एकोमोडेशन कैसे कर सकते हैं. जैसे जो कुछ नॉर्मल बच्चे हैं उनको साइन सिखा करके, और जो ओरल अप्रोच यूज कर रहे हैं उनको साइन लैंग्वेज में या फिर डेफ बच्चों के साथ मिला करके, लिप रीड का इंपॉर्टेंस समझा करके ऐसे बुक्स यूज करना जो कि हियरिंग लॉस और डेफनेस, जिसमें जरूरी बातें बोली गई हैं कि डेफनेस क्या है या फिर हियरिंग लॉस क्या है, ऐसी बुक्स इन नॉर्मल बच्चों को देना चाहिए. इनवाइट डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग एडल्ट्स. इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे अभी नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल भी पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है. इम्प्लीमेंट अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स प्रोग्राम. टीच यूनिट्स ऑन सोशल टॉपिक्स. कोई ऐसे टॉपिक्स जरूरी इंक्लूड करना चाहिए जो कि उनको सोशलाइजेशन के लिए इनपुट दे सके, एकोमोडेट कर सके. उस तरीके के एडेप्टेशन जरूरी है. और सम काइंड ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड, लाइक प्रोवाइड कंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस विद रिगार्ड टू क्लास रूटीन एंड रूल्स, है ना. कंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशन मीन्स हम बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड जो कुछ भी है कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्स लेना, या फिर क्लासरूम रूटीन्स और रूल्स में यदि कुछ चेंजेस लाना है, दैट आल्सो प्रोवाइड. And place general rules and behavior expectation on chart displayed in rooms or on sheet paper placed on the student desk. Use interest inventories, positive and negative. I think it's too lengthy. I am going. So cut short करता हूँ मैं. Using assignments books, provide regular feedback and check progress. ये behavioral मतलब बच्चों से हम feedback जो लेना है उसके accordingly क्या adaptation या accommodation करना जरूरी है. ठीक है. Same way. Behavioral, like use response cost procedures, taking away a privilege point or reward.
है ना, बच्चों को इंकरेज करना, यदि कोई अच्छा काम किया उसके लिए इंकरेज करना है बच्चों को नॉट ओनली कंटिन्यूली यूज टाइम आउट, बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक देना जरूरी है टाइम आउट, ताकि दे कैन रिफ्रेश विद देयर टाइम के साथ और कंसंट्रेशन स्पेंड कर सकें। लिमिट द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बाय एस्टैब्लिशिंग एंड आइसोलेटेड वर्क स्टडी एरियाज, है ना। तो ऐसे जैसे अभी क्या हो रहा है कि एक रूम में बच्चे हैं अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो आइसोलेटेड फील करते हैं, तो ऐसा ना हो, इस तरह के शेड्यूल में हमको चेंजेस लाना जरूरी है। कुछ मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन शेड्यूल में जरूरी है कि चलो एक थ्योरेटिकल क्लास हो गया है, क्लास साइंस का क्लास कर दिया या मैथ्स का क्लास कर दिया, उसके बाद एक ब्रेक दे दिया है, म्यूजिक सिखा दिया या फिर योगा क्लास कर दिया या सम काइंड ऑफ डिफरेंट हॉबीज क्लासेस। तो इस तरीके का जो वी कैन से मोनोटोनस टीचिंग लर्निंग होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया जा सकता है by giving them use time out. Okay, so this modification is also necessary ताकि बच्चों में एंगर ना हो, ज्यादा मोनोटोनसली ना हो, ज्यादा फील ना हो कि वो बोर हो रहे हैं या फिर फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं बच्चे की ज्यादा कंटिन्यूटी है उनके साथ सेम मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो इसके बाद इवेल्युएशन इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम जो मॉडिफिकेशन किया है, अडॉप्टेशन किया है, वो हाउ लॉन्ग इट्स एप्लीकेबल टू evaluate these children. So उस तरीके से adaptation या modification हमको evaluation pattern में भी करना जरूरी है। Some examples यहाँ पर दे रहे हैं। Use peer tutor and para professionals volunteers work with the students, review of our test, allow test times, test items to be signed to the students and the students to respond in sign. Allow tests to take with teachers or paraprofessional who works with students with disabled. Provide extra time to complete test and quiz. Allow test items. ठीक है, तो this kind of as per the disability we can say, जहाँ पे मैं यहाँ पे hearing impaired की बात किया है, इसीलिए students professional paraprofessional को include करना जरूरी है for evaluation के समय। Same way, provide short test on a more frequent basis. Start progress or lack of progress. Provide additional information to explain test questions and instructions. Allow students to use notes, study guides, textbooks on test. उनका जो डेली वर्क जो किया है उनका evaluation and participate in additional to test. Use projects or portfolios in lieu of test. कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जाम पैटर्न में ही आप इवेल्युएट करें, उनको कुछ असाइनमेंट दे करके या प्रोजेक्ट वर्क दे करके, ग्रुप प्रोजेक्ट हो या इंडिविजुअली प्रोजेक्ट हो, ऐसा दे करके उनको असाइन करके भी वी कैन इवेल्युएट देम। प्रोवाइड ग्राफिक क्यूज हैं, कुछ ऐसे ग्राफिकल क्यूज यूज करके वी कैन ऑब्जेक्टिव टाइप्स है या फिर चूज दिस राइट वर्ड है, दैट काइंड ऑफ इवेल्युएशन वी कैन get from students. Give alternate form of test, matching, multiple choice question, fill in the blank. So ये I think all teachers know किस तरीके का adaptation हम करना चाहिए in evaluation method. So this and grading also important when we evaluate the whole content we have taught in the classroom or to the children. So उनका जो grading we can say how we will evaluate them. Use IEP as a criteria for grade. You know, उनका individual educational program को ही क्राइटेरिया मानना चाहिए ग्रेडिंग देने के समय। वो इंडिविजुअली कितना एजुकेशनल प्रोग्राम को डेवलप किया है या फिर उसमें इन्वॉल्व है। डेवलप कॉन्ट्रैक्ट एज बेसिस फॉर ग्रेड। यूज द पास एंड फेल सिस्टम। राइट डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स एंड गिव एग्जांपल्स रिगार्डिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। यूज अ चेकलिस्ट ऑफ competencies associated with the course and evaluate according to mastery of the competency. So there is ultimate drive and untapped resources. We can count on the restoration not only of education essential services but its fundamental aspirations. So यहाँ पे मैं complete किया है कि what modification accommodation I have completed explanation up to the grading. Use checklist जो हम checklist के through उनको evaluate कर सकते हैं. So adaptation and modification जो जरूरी है, accommodation and modification for adaptation इस तरीके से होना चाहिए. Then there is a unlimited drive and untapped resources. We can count on the restoration not only of education essential services but its fundamental aspiration. तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो कोविड के चलते जो प्रॉब्लम अराइज हुई हैं, जो कि जो एडॉप्टेशन या अकोमोडेशन जो थ्योरेटिकल था, जो हम टेक्स्ट बुक में या फिर क्लासरूम में कर सकते थे, वो आज की डेट में, आज के समय में
ऑनलाइन क्लासरूम्स में और ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वी कैन से नॉट अप टू द मार्क है, ये प्रॉब्लम है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू स्टे ट्रू टू प्रिंसिपल एंड कंडक्ट रिफॉर्म्स so that not only will the children and youth regain their promised future, but all education stakeholders find their role in making it happen. So it's a responsibility of government में हम teachers हो या फिर school authorities हो, we can say, or all the professional working in this community, disabled के लिए जो काम कर रहे हैं, इन सब का responsibility बनता है कि अभी इस situation में किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन जितना पॉसिबल है हम रिकॉर्डिंग मेथड करके वीडियोस के थ्रू करना, ये जितना पॉसिबल है एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट करके मॉडिफाई करके वी हैव टू रिप्रोड्यूस दैट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज ट्रू फॉर द एजुकेशन community at large, including local communities upon whom education continuity depends during crisis and who are the key building back better. So last but not least, I यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ट्रू एजुकेशन कम्युनिटी एट लार्ज, बहुत बड़ा ऐसा कम्युनिटी जहाँ पर हम एजुकेशन देना जरूरी होता है, इंक्लूडिंग लोकल कम्युनिटी हो या ग्रास रूट लेवल वर्कर्स से हो और अदरवाइज डिसेबल्स हो. तो एजुकेशन कंटिन्यूटी डिपेंड्स ड्यूरिंग क्राइसिस. तो इस क्राइसिस के मद्देनजर रखते हुए भी हमको कंटिन्यूटी बनाए रखना है. जो भी मोड्स अवेलेबल है, मेथड्स अवेलेबल है, उनमें मॉडिफाई करके एकोमोडेट करके ऐसे अडेप्टेशन को लेना है. सो दीज आर द बिल्डिंग की टू बिल्डिंग बैक बेटर. मींस हम वी कैन से की है, एक चाबी है जिसको भी हम इसको बैक लेके आ सकते हैं. सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू हैव फाइंड no difficulty to understand this. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. There is one question from Shivanshu Shukla. Okay. Question is, how impact of COVID-19 on student equity and inclusion, and how supporting vulnerable students during school closures and school reopenings? Yeah, of course. Inclusive, when we talk about the inclusive education, so all children at a part, they are attending the school. And so normal बच्चों के लिए possibility है, वो लोग they can able to hear, they can able to visualize, they can able to intellectual सब possibilities है normal के साथ. जब हम inclusive सोसाइटी में या include उन बच्चों को, हो सकता है एक क्लासरूम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे नॉर्मल हैं और only 1 or 2 जहाँ पे रिसोर्स हेल्प नहीं मिल सकता है. तो ऐसे लोगों के लिए क्लोजर एंड ओपनिंग, I think there is no issue in schools to take them again in the online classes. ऐसा तो मेरे को नहीं लगता कि जहाँ पे क्लासरूम्स चल रहे हैं और इंक्लूडेड जो चिल्ड्रन है डिसेबल, उनको मौका नहीं मिल रहा है. तो बस ये है कि जैसे आपका क्वेश्चन इज वेरी राइट कि विद इंक्लूजिंग मींस डिसेबल बच्चे उसमें कैसे अफेक्ट कर पाएंगे. सो डेफिनेटली इस पोजीशन में क्या है कि उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा. एक सपोज डिसेबल है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो इंटरप्रेट के थ्रू उनको कम्युनिकेशन में हेल्प देना है, या फिर ऐसे सोशल वी कैन से एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर एस्टैब्लिश वी कैन से रिसोर्सेज हैं जहां पर दे हैव टू गो वंस इन अ वीक और ऑनलाइन ऐसे अप्रोच कर सकें. जो अवेलेबल है रिसोर्सेज ऑनलाइन, तो पेरेंट्स शुड ऑल्सो नो कि ऐसे यदि स्कूल्स में जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ऑनलाइन रिसोर्सेज देयर आर सो मच अवेलेबल. टेक्नोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि यूट्यूब में या फिर इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके वीडियोस तैयार करके अपलोड किए गए हैं. तो जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, एक्सक्लूड हो गए हैं, दे कैन गेट दिस काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम द इंटरनेट वर्किंग वीडियोस, ओके, और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस जहां पर है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाए गए हैं. देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स का भी ऐसा एफर्ट है कि जो ऑनलाइन क्लासेस की गई हैं उनको रिकॉर्डेड मोड में दे आर लॉन्चिंग इन यूट्यूब और देयर ओन वेबसाइट. सो आई थिंक ऑल स्टेट्स में पॉसिबल है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ओडिशा गवर्नमेंट ने और अदर जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है और जहाँ पे
ऐसे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लासरूम तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन वीडियोस देख करके दे कैन एबल टू लर्न। सर और एक क्वेश्चन है सर और एक क्वेश्चन है यशोदा जी से। उन्होंने बोला है कि VI स्टूडेंट के लिए हम कैसे एडेप्टेशन करें। हाँ, एडेप्टेशन मीन्स अभी तो आपको मालूम है कि जितने भी गजेट्स हैं जहाँ पर कि हम रीडेबल है ना, जहाँ पे टेक्स्ट हम रीड कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आप देख रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस में भी जो हम बोल रहे हैं उसको यदि हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं सुन पा रहा है तो टेक्स्ट को रीड कर सकता है। सेम में विजुअल इम्पेयर्ड में आई डोंट थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ ओनली विजुअल जो फीडबैक उनको नहीं मिल पा रहा है, वो लोग इसके लिए थोड़ा सा मिस कर रहे होंगे, जो कि विजुअली गैजेट का तो उनके साथ कोई इतना रिलेशन नहीं है कि वो विजुअली देख करके करना है। ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं दे आर नॉट यूजिंग राइट नाउ, तो सालों से वो सुनते आ रहे हैं, रिकॉर्डेड बुक्स उनके रिकॉर्डेड टेप में जो टेक्स्ट पे बनाए गए हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। So I think they are not much affected due to this online classes जो visually दिया जा रहा है उसके कारण। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So now I want to call Mrs. Juri Bora Hazarika, vocational instructor, for thank you speech. And madam, एक second, and request to all the participants, please give your feedback. We already shared the feedback form. Please give the feedback. Okay, thank you, madam. Please up continue. Okay, sir. Good afternoon, everyone. On behalf of CRC Sikkim, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar on curriculum adaptation in imparting skilling for PWDs during and post-COVID. I would like to extend my sincere thanks to Mr. Nageswar Rao, Assistant Director, AYJNISSD and ERC, Kolkata. Thank you, sir, for your valuable lecture on the topic curriculum adaptation in imparting skilling for PWDs. Thank you so much, sir, for sparing your valuable time for today's webinar. I am sure all the participants, including parents of PWDs, would have benefited, and we hope we will further get such more opportunities to listen your lecture on various other topics in the future. Thank you so much, sir. Thank you very much. A special thanks to our Director NIPBD and Director in Charge CRC Sikkim, Dr. Himanshu Das, for his greatest support and guidance. This very webinar is not possible without your kind support and guidance. Thank you so much, sir. I thank our resident coordinator, Iris ma'am, for her influencing support and coordination. Thank you so much, ma'am. I thanks to our coordinator, Farad sir, technical assistant Manish Kumar, and all other staff of CRC Sikkim. Without your support, this very webinar is not possible. My heartiest thanks to our beloved participants for active participation. In future, we hope you all are always connected with us. With these warm words and kind messages, we move to the end of today's webinar. Thank you so much. Thank you, sir.